R10 agenda. Hello and welcome. You're watching the News Hour Agenda. I'm Padmaja Joshi. Well, elections in Uttar Pradesh, as they draw closer, the war of words only gets more heated. New phrases are defining the discourse. Speaking in Moradabad, today Union Home Minister Amit Shah took another swipe at Akhilesh Yadav and his government in Uttar Pradesh, giving a spin to the word Nizam. Shah alluded that the Samajwadi Party Sarkar shielded criminals and those who were corrupt, while the BJP under Yogi Adityanath ensures that governance remains the sole focus. So, Nizam as in government versus Nizam as Amit Shah defined it under the Samajwadi Party. Listen. आपका निजाम का मतलब शासन होता है। निजाम का मतलब क्या था? जरा उत्तर प्रदेश की जनता को सच सच बताइए। उनके निजाम का मतलब है एन से नसीमुद्दीन, आई से इमरान मसूद, जेड से आजम खान और एम से मुख्तार अंसारी। भाई आप मुझे बताओ, आपको नसीमुद्दीन, इमरान, आजम और मुख्तार वाला निजाम चाहिए क्या? The Samajwadi Party, however, called it nothing but a desperate deflection from a dismal track record that has nothing to boast of in the name of development. देखिए, भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह इस जाति और धर्म के फोबिया से कब बाहर आएंगे? इन लोगों को कोई काम नहीं है, 5 साल कुछ नहीं कर पाए, अब जाति और धर्म को लेके उत्तर प्रदेश में फिर आ गए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता अब इनके बरगलाहट में आने वाली नहीं है, क्योंकि जनता को पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश में कोई भी डेवलपमेंट नहीं किया है। आप कोई भी चुनाव उठा के देख लें, चाहे वो बंगाल का हो, चाहे दिल्ली का हो, बिहार का हो, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र का हो, जातिवाद, पाकिस्तान, आतंकवाद, राष्ट्रवाद, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दे नहीं रहे। You're watching the News Hour at 10, debate number 1 on Times Now, Super Prime Time. All right, joining us on the debate, Sanju Verma, national spokesperson of the BJP, Acharya Pramod Krishnam, leader of the Congress, Faizan Khan, spokesperson of BSP. But I'll first come to you, Zeba Yasmin, spokesperson of Samajwadi Party. What do you make of this Nizam? Nizam यानी कि सरकार as opposed to Nizam versus जैसा अमित शाह जी ने expand किया. What do you make of that? Names which Amit Shah ji took, 3 of them are not member of Samajwadi Party. So we don't think we need to, revert back to Amit Shah ji, because whatever he speaks is not an authorized statement, what we believe. And see, if I, being a party representative, if I don't have anything to talk, any substance, then obviously I'm going to talk crap. This is what Bharatiya Janata Party is. Okay, language, please, language, please. National TV, language. I'm not being, but what he's talking is crap according to political agenda, I would say, ma'am. Because see, if you don't have substance, if you have not done anything in past 5 years, then obviously you are going to talk about Hindu Muslim, you're going to talk about leaders from other parties. Why don't you talk about Teni Maharaj? Okay, so why the reason why I'm asking you the question, I will get Sanju Verma to respond to that. Okay, actually Sanju Verma, start by responding. When you have no substance, then you resort to this kind of alliteration and abbreviation and rhetoric. Padmaja, I will repeat what Amit Shah ji said today. The fact is that the Bharatiya Janata Party believes in 3 V's: Vikas, Vistar and Vyapar. And what does the Samajwadi Party believe in? It believes in 3 P's: Pakshpat, Parivarvad and Palayan. Point number 2, when you talk about Amit Shah's language, let me remind you that barely a few weeks back, Akhilesh Yadav said प्रधानमंत्री को अभी काशी में ही रहना चाहिए, अंतिम समय में लोग यहीं पर आकर रहते हैं.
इसलिए यहाँ बैठकर नैतिकता पर भाषण देना बंद करो. Point number 3, for all those people who say that BJP is about development because it has nothing to showcase, I just want to say one thing, Padmaja. You know, we are willing to give all the credit to Akhilesh Yadav, the credit GV. I just want to ask one simple question. Fine, you thought about the Jewar Airport way back in 2000. You thought about the Saryu Canal way back in 1978. You thought about the fertilizer plant in Gorakhpur way back in 1990. You thought about the Purvanchal Expressway way back in 2017 or 2015 as you claim, just before Yogi Adityanath took over. My simple point is this. आपने इतना कुछ सोचा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बारे में सोचा, गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में सोचा, सरयू कनाल के बारे में सोचा, जेवर एयरपोर्ट के बारे में सोचा. Why could you not implement a single project? Okay, we'll come to that in just a second, but I want to know that is it pure coincidence that, you know, we have a series of rallies which was addressed by Amit Shah today, and he started with Nizam. Remember, it also comes on the back of that entire Jinnah thing. So today he said it's Ganna versus Jinnah, then he said Nizam, then he said Bahubali versus Bajrang Bali. Are you seriously saying that there is no undercurrent there when you are invoking Jinnah, Nizam, Bahubali versus Bajrang Bali? To the lay person, it seems this is a clear attempt at polarization. You are saying हम गन्ने की बात कर रहे हैं, वो जिन्ना की बात कर रहे हैं, हम वो बाहुबली है, हम बजरंग बली है. So, I mean, you're going down that road, Sanju Verma. Padmaja, the fact is that whether you like it or not, Samajwadi Party has always believed and played the politics of polarization. चाहे वो लाल टोपी हो, चाहे वो आजम खान की गोल टोपी हो, यहाँ पर टोपियों को लेकर religious राजनीति and communal राजनीति is something that is the hallmark of Samajwadi Party. I want to ask you one thing. Okay. Today the GDP of Uttar Pradesh, Padmaja, I'll take 20 seconds. The GDP of Uttar Pradesh today under Yogi Adityanath is 17.5 lakh crore. Today Uttar Pradesh ranks at number 2 in ease of doing business. I'm talking of Ganna Kisan. Today, in the last 4.5 years, and this is what Modi ji has said, so I'm willing to be held accountable to it. Okay. 1.5 lakh crore has been directly or indirectly given as remuneration to Ganna, sugarcane farmers. So why is it that we should play the politics of polarization? We have nothing to lose. Okay, you have nothing to lose, yet you invoke Jinnah again and again, you invoke Nizam now, but अब ये टोपी पे भी बात आ गई है. ज़ेबा यास्मीन. तो अब ये टोपी, लाल टोपी, गोल टोपी, ये शमशान कब्रिस्तान फेज में हम वापस जा रहे हैं. Of course, that is what Samajwadi Party. That's what Samajwadi Party. So okay, we are down to that now. ज़ेबा यास्मीन. See, Samajwadi, lost in 2017, and Samajwadi Party is not answerable after 2017. So it's better if Bhajpa start talking about themselves, because they are into power since 2017 in Uttar Pradesh, and they are answerable for themselves. Why they keep on talking about Samajwadi Party? They are so scared about our topi, whether it is gold topi, whether it is lal topi. Why Sanju is so scared? I'm scared. Oh my God. मुंगेरी लाल के हसीन शब्द देखना बंद करिए. Stop hallucinating. BJP and its allies won you won only 47 seats. एक नई दुकान खोल रखी. Party won 47 seats, and you are talking of BJP being scared. Are you insane? Sanju P, shouting will not resolve the problem. No. I'm not shouting. I'm showing you the mirror. And what you see is unpleasant. You were reduced to a pathetic 47 seats. Okay. The BJP and its allies won 25 seats. And you're coming and lecturing the BJP. Okay, so you are saying that you have plenty of projects to fall back on, but ultimately this seems to be the quick fix, Acharya Pramod Krishnan. Ultimately, it is this visceral issue that everyone returns to, and that is pretty much going to set the tone for how this election campaign is going to be. देखिए पदमजा, भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं ये शब्दों से खेलना बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, और शब्दों से खेलते खेलते ये देश की जनता की भावनाओं से खेलना शुरू इन्होंने कर दिया है, और इसीलिए इन्हें इस देश की इस लोकतांत्रिक प्रणाली में, डेमोक्रेटिक सिस्टम में
इन्हें विश्वास नहीं रह गया, ये संजीदगी से बात नहीं करना चाहते हैं, ये सीरियसली इस देश के लोकतंत्र को नहीं लेते हैं, इसलिए उसका मखौल उड़ाना चाहते हैं। भारत के गृह मंत्री का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन जो उन्होंने भाषा का प्रयोग किया है ये उनके नॉन सीरियसनेस को झलकाती है, प्रदर्शित करती है। जहां तक संजू वर्मा जी का सवाल है, संजू वर्मा जी की तो मजबूरी है, संजू वर्मा जी की मजबूरी है कि अमित शाह जी के बयान को वो डिफेंड करें, अमित शाह जी के बयान को डिफेंड करना उनकी मजबूरी है। लेकिन क्या इस देश का लोकतंत्र इतना कमजोर है कि उस पे इतने सीरियस इलेक्शन पर पदमजा मुझे बोलने दीजिएगा, संजू वर्मा जी कूद पड़ी बीच में। ओके, इनको प्लीज उनकी बात पूरी करने दीजिए। You said your entire point. You said your entire point. At least let him make an opening comment. Please, Sanju Verma. The Congress and BSP haven't spoken yet. Let him give his opening comment. चौकीदार चोर है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को फटकार कर ओके, आचार्य प्रमोद कृष्णन, रेटरिक हर इलेक्शन कैंपेन में होता है। 2019 में राहुल गांधी चौकीदार चोर है कह रहे थे, अब आप कह रहे हैं कि ये पीपीपी वर्सेस वीवीवी नॉन सीरियस है। अब कैसे? नहीं, चौकीदार चोर है का जब नारा राहुल गांधी जी ने दिया तो उन्होंने सीरियसली दिया, संजीदगी के साथ दिया, मखौल नहीं बनाया, उन्होंने जांच की मांग की। ओके, अब संजू वर्मा जी अमित शाह जी के बयान को अगर डिफेंड करना उनकी मजबूरी है, वो करें, उनका धर्म है। लेकिन क्या पदमजा, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है जिसमें 20 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन के भविष्य का फैसला होना है, वहां भारत का गृह मंत्री करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र के साथ मजाक है। Okay, this is non-serious, says the Congress. Before the BSP also comes in, Sanju Verma, and I request you, Acharya Pramod Krishnan, I think you're in a moving vehicle. If you could please stop because we are losing the connection with you. तो गृह मंत्री जी ने दिल्ली के चुनावों में भी इस तरह की बयानबाजी की थी, जिसका फायदा बीजेपी को नहीं मिला। अच्छा, this is non-serious, says, but एक second, you know, we've been referring to a couple of things that the Home Minister said today on the election trail. A lot of people may not have heard it. Let us actually play out of all the things that he said as the day progressed. Listen in. जब ये समाजवादी पार्टी की सरकार थी, हर जनपद में बाहुबली परेशान करते थे या नहीं करते थे? हमारी बहन बेटियों को परेशान करते थे या नहीं करते थे? जमीन छीन लेते थे या नहीं छीन लेते थे? आज योगी जी के राज में कोई बाहुबली दिखाई नहीं पड़ता, केवल बजरंग बली दिखाई पड़ता है, बजरंग बली दिखाई पड़ता। एक नई प्रयोगशाला बनाई थी, नए प्रकार की प्रयोगशाला को अंग्रेजी में टुंकाक्षर में लैब कहते हैं। लैब का स्पेलिंग होता है LAB। इन्होंने L से पूरे प्रदेश को लूट कर ये इत्र वाले जैसे बोरे भरने का काम किया था, बोरे भरने का काम किया। ए से होता है आतंकवाद। समाजवादी पार्टी 3P के आधार पर चलती थी, परिवारवाद, पक्षपात और पलायन। भारतीय जनता पार्टी 3V के आधार पर चलती है, विकास, व्यापार और सांस्कृतिक विरासत। मित्रों, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरा गन्ने का प्रदेश। अब इनको तो गन्ना का नाम ही मालूम नहीं है, जिन्ना 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 करते हैं। अरे भाई, जिन्ना का कोई काम नहीं है, वो पाकिस्तान चले गए थे। यहां पर गन्ने का काम है। जब आप थे तब गन्ना किसानों को भुगतान नहीं होता था। Non-serious, Sanju Verma. That's the accusation. Okay. Padmaja, I just want to say a couple of things here. You know, the seriousness or otherwise is debatable, to each his own. I believe the proof of the pudding is always in the eating. And I think let's not be undermining what the Prime Minister does for the Kisan, the farmers, because that is the most important segment that is going to vote. I just want to tell you very seriously, Padmaja, 27,000 crore has been given via PM Kisan only to Uttar Pradesh farmers. 36,000 crore of loan has been waived off only for Uttar Pradesh farmers. 1.5 lakh crore has been given to the sugarcane farmers of Uttar Pradesh. You know, Are these not serious? I
है कि हमने गन्ना किसानों को इतना 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 दिया है, उसमें बीच में जिन्ना लाने की क्या जरूरत है? आप बोलिए गन्ने को हमने इतना दिया, गन्ने को हमने इतना दिया, गन्ने को हमने इतना दिया। जिन्ना लाने से आपको क्या प्रॉब्लम है? ये हकीकत है कि अखिलेश यादव है। अरे क्योंकि हर चीज में निजाम, जिन्ना, कब्रिस्तान, फला, टोपी, टापी, क्या जरूरत है ये सब? I want to ask you one thing. You say जिन्ना लाने की क्या जरूरत है? Tell me one thing. When there was a bomb blast in Varanasi in 2006, who went to the Allahabad High Court saying Indian Mujahideen is innocent, playing the politics of appeasement? It was लाल टोपी वाले अखिलेश यादव। तब पद्मजा जी, आपने तो कभी अखिलेश यादव को पूछा नहीं, why you are engaging in minority appeasement? Today you want to lecture the Bharatiya Janata Party? No. Questions have been asked equally to every side for tokenism and this kind of, any appeasement that is done. But on a very serious election trail, when you say, what beats me is that when you have 4 expressways, metros, airports to boast of, then you go to people with that. Or are you not confident that people actually cast votes? We will expose the Samajwadi Party's politics of appeasement as well. Let me tell you, we are fighting this election on 2 planks. Okay. One is development along with spiritual vibrancy. And Okay. second is exposing the lost decades under Congress, Samajwadi Party and BSP so that people should not bring Okay. back Mafia Raj. Faizan Khan of the BSP wants to respond to you. Spiritual vibrancy along with development. Faizan Khan. Of course. Padamjaji, I think so that Sanju Verma is not too much smart in comparison of Amit Shah ji. He is the Home Minister of the country, and you have shown the statement of Mr. Amit Shah ji. I am not. Not a single statement he have given in Purvanchal Expressway, Ganga Expressway, or any development. He just started his speech towards the polarization. As the 2022 election is coming more nearer, they will start more polarization. You have shown that Sanju Verma is speaking like development, but not a single statement given by the Amit Shah ji according to the development. Just because she says lies. गन्ना किसानों का रेट बहुजन समाज पार्टी ने दोगुना करने का काम किया. Only 25 rupees they have increased in 5 years. I am saying in 5 years they have increased only 25 rupees. This is the data, Padamjaji. You can see it. But Sanju Verma doesn't seem a very good smart because Amit Shah knows that without the development, speaking polarization is the main polarization. Their aim is to polarization. तो आप कह रहे हैं कि अल्टीमेटली वोट पड़ेगा और शॉर्ट होगा पोलराइजेशन करके. आप यही कह रहे हैं कि ये सब निजाम की जो बात है, Exactly. आजम खान से ज्यादा ये पोलराइजेशन की कोशिश है. तिलक तराजू और तलवार इनको मारो. Exactly, because the Hindu voters are not polarizing towards the BJP. That's why they have come to welcome the Owaisi Sahab. That's why they are welcoming Jinnah. That's why they are welcoming Kabristan. That's why they are welcoming. The BJP. मैं आपसे पदमझा जी साफ पूछता हूं, संजू वर्मा जी ये क्यों नहीं बोलती हैं कि आपने डेवलपमेंट कुछ नहीं किया, इसलिए 4.5 सालों में आपको जिन्ना, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, पोलराइजेशन की जरूरत पड़ी है. आप में हिम्मत है संजू वर्मा जी, तो क्यों नहीं अपनी बात अमित शाह जी से कह रही हैं कि सर आप गलत कर रहे हैं, ये सब बातें ना करें, आप एक्सप्रेसवे की बात करें, आप इसकी बात करें. हिम्मत है संजू वर्मा जी? आप अपने होम मिनिस्टर साहब को क्यों नहीं समझाती हैं कि आप डेवलपमेंट की बात करिए, निजाम की बात मत करिए. क्यों होता है? Zeba Yasmin also wants to come in. Zeba Yasmin also wants to come in. Sanju Verma ji desh se. Okay, Zeba Yasmin, yes. See, I've heard 4 videos which you have, shown to us, and we have not found in such a single video also that any substance was talked about. See, even Sanju ji sitting here is talking, out of the way. She's saying that in her regime she has done a lot for the farmers. This is the only government where farmers protested for more than a year. Say more than 700 farmers sacrificed their life, and still she's bragging about her government. She's not accepting. Okay, yes, please stick to the issue. Stick to the issue, because if we talk about those bills, we talk about those laws, that's a separate issue altogether. Please. Why she's bragging? She's bragging here
sitting and talking that she has done a lot for farmers. I repeat, 27,000 crores to Uttar अमित Pradesh शाह जी वहां पे जातिकरण बता रहे हैं, पोलराइजेशन की तरफ चुनाव को ले जा रहे हैं. संजू वर्मा इज स्पीकिंग अबाउट द एक्सप्रेस वे. करने की क्षमता ही नहीं कहां पर एक्सप्रेस वे का जिक्र किया अमित शाह जी ने? That is the only thing that you are good at. Gayatri Prajapati was your trump card. Talk about the Tani. Why you are not talking about the Tani? Okay, you know, Zeba Yasmin, the argument can be made that, you know, if you suddenly start invoking Jinnah out of the blue, and Akhilesh Yadav did it first, then ultimately you have already dragged down the discourse to a point कि उसके बाद जिन्ना के बाद निजाम भी निकलेगा, जिन्ना का जिन भी निकलेगा, उसके बाद शमशान भी होगा, कब्रिस्तान भी होगा. ये सब एक बार you lower the bar, then everyone takes it lower and lower. No, so Akhilesh... I agree, Akhilesh ji took the name of Jinnah, but the context was entirely different, that he passed out, this man passed out from the same university. I agree, but the context was entirely different. The context, Bharatiya Janata Party is talking, they are polarizing the thing. Who made this deplorable remark against the Prime Minister? पदम जी, संजू वर्मा जी को से ज्यादा अमित शाह जी को पता है कि इस वक्त डेवलपमेंट नहीं बात कर सकते. हिंदू वोट को नहीं मिल रहा है, जाहिर सी बात है, इसलिए वो वैसी साहब का वेलकम कर रहे हैं, वो जिन्ना का वेलकम कर रहे हैं. संजू वर्मा से ज्यादा स्मार्ट है अमित शाह जी. अच्छा, अपने आप को बहुत चालाक, बहुत राजनीति के चाणक्य माने जा रहे हैं बीजेपी. अच्छा, आप संजू वर्मा जी के ऊपर प्लीज व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए. लेट्स कीप इट अबाउट द इशू एंड नॉट अबाउट अमित शाह एंड संजू वर्मा, प्लीज. आचार्य प्रमोद कृष्णन, यस. नहीं, शी इज स्पीकिंग अबाउट द डेवलपमेंट. नहीं तो ठीक है ना, आप मुद्दे पे बात कीजिए प्लीज. कौन कितना क्या इंटेलिजेंट है नहीं है, ये हम यहाँ पे वो आंकने के लिए नहीं बैठे हुए हैं. आप बताइए, निजाम की बात हो किया. अमित, आपने टॉपिक रखा है अमित शाह जी की. अमित शाह जी ने कहाँ डेवलपमेंट की बात किया है? उन्हें पता है कि 4.5 साल में कोई डेवलपमेंट हुआ ही नहीं उत्तर प्रदेश में. ओके, इसलिए आचार्य प्रमोद कृष्णन आचार्य प्रमोद कृष्णन, यस. देखिए पदम झा, मैं 2 बातें करना चाहता हूं, उसके बाद फिर मुझे आप समय मत दीजिएगा. पहला, मैं संजू वर्मा जी को प्रणाम करता हूं कि हम 3 लोग हैं और एक आप भी हैं, शामिल हैं. हम सारे मिलके जितना बोल रहे हैं, संजू वर्मा जी अकेले ने मोर्चा संभाल रखा है पूरा 20 मिनट से. दूसरी बात यह है कि बीजेपी की जो स्थिति है वो ऐसी है, 1 वर्सेस 3 है. ये आप बता दीजिएगा अपनी पार्टी को जाकर के, क्योंकि बार बार वो जाके मीडिया को बोलते हैं कि आप सरकार, प्रो सरकार हैं, हमें बोलने नहीं देते. ये बात जाइएगा अपनी पार्टी को जरूर बताइएगा. हाँ बोलिए आचार्य. मैं रोज बताता हूँ पदम झा, बहुत अच्छी बात. देखते भी हैं. प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है. दूसरी बात मैं इंपॉर्टेंट कहना चाहता हूँ कि बीजेपी की हालत उस शोरूम की तरह है जिसके बाहर बोर्ड तो बड़ा खूबसूरत है, लेकिन दुकान में सौदा नहीं बचा है. तो इसलिए ये जिन्ना, निजाम और हिंदू, मुसलमान, तालिबान, पाकिस्तान और ये भारत, पाकिस्तान, ये सब आएगा. और ये सब आएगा. बीजेपी की दुकान इस समय जो है वो खाली हो चुकी है, सौदा नहीं बचा है इनके पास में. और ये देख लेना, 2022 में ये उत्तर प्रदेश से जाएंगे और 2024 में पूरे देश से जाएंगे, क्योंकि इनका जो झूठ है वो सर चढ़ के बोल रहा है, इनका अहंकार सर चढ़ के बोल रहा है. भारत का एक बच्चा संजू वर्मा, लोग हैं, संजू वर्मा, यू आर नॉट फाइंडिंग, किया नहीं. आपको खरीदार नहीं मिल रहे हैं आपकी इलेक्शन पिच के. इनकी दुकान का सौदा ही खत्म हो गया है. अब इनके पास शोरूम में बोर्ड है, शाइन बोर्ड बड़ा सुंदर है, उसका ये बड़ा प्रचार कर रहे हैं. ये मैनेजमेंट कर रहे हैं, लेकिन अब इनके ऊपर भरोसा देश की जनता नहीं कर रही है. आपने बेसिकली पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया, आपने सवाल नहीं पूछा. मोर स्पेसिफिकली आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन संजू वर्मा. व्हाई इज इट, हमने जब शुरुआत की थी, इलेक्शन कैंपेन रफली अक्टूबर में शुरू हो गया था, हीटेड हो गया था. अक्टूबर में हम फिर भी एयरपोर्ट, लैंडिंग स्ट्रिप, एक्सप्रेसवे की बात कर रहे थे. जैसे जैसे चुनाव पास आता जा रहा है, और ज्यादा मथुरा में मंदिर, इधर वृंदावन, जिन्ना, निजाम, ये सब, क्या एक सेंस है कि जो गुस्सा है उसको अलिविएट करने के लिए एंड में यही कार्ड खेलना पड़ेगा, इमोशंस पे ये चुनाव लड़ना पड़ेगा, इसलिए यू डोंट वांट टू टेक अ चांस? Okay, Padmaja, I think that's a very nice question. I'll just say first and foremost, Acharya Pramod made a lot of comments. I just want to say Congress is nowhere in the equation. Your vote share in Uttar Pradesh in Lok Sabha 2019 was barely 6.3%, and
Even in 2017 UP Assembly elections, you won 7 seats, lower than the Apna Dal, which got 9 seats. आप उत्तर प्रदेश में कहीं इक्वेशन में हो ही नहीं. This is a bipolar fight between the समाजवादी पार्टी and the कांग्रेस. बहन जी तो अभी तक घर से निकली नहीं है, ठंड में अभी भी घर के अंदर है. I want to say one thing, Padmaja. Are you saying that Indian elections में caste equation does not matter, religion does not matter? These things matter. Development also matters. Spiritual vibrancy also matters. The caste factor also matters. The Indian election is an amalgamation of various factors. And what is wrong if the BJP is calling out the bluff of Samajwadi Party, the large topi walas? अगर ये सब चीजें मैटर करती हैं तो फिर आप पब्लिक के सामने बोलिए कि राम के नाम पे वोट मांगेंगे, राम के नाम पे चुनाव लड़ना चाहते हैं. आप फिर क्यों कहते हैं कि हम विकास के नाम पे चुनाव लड़ना चाहते हैं? आप क्यों कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास? आप बोल दीजिएगा, आप बोल दीजिएगा, आप पूरे देश के सामने बोलिएगा. अरे भाई बोलिएगा ना कि आप धर्म के नाम पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, राम के नाम पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, काम के नाम पे चुनाव नहीं लड़ना चाहते. आप अपनी बात को अपनी बात को अपने ही आप तोड़ मोड़ रहे हैं. आप अपनी बात का विरोध अपने आप कर रहे हैं. आप कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दे रहे हैं. आप एक तरफ विकास की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि धर्म, अध्यात्म. मैंने कब कहा कि धर्म मायने नहीं रखता? मैंने कब कहा कि जाति मायने नहीं रखता? मैंने कब कहा कि अध्यात्म मायने नहीं रखता? लेकिन आप तो कहते हैं आप जो वोट मांगेंगे वो विकास के नाम पे मांगेंगे, लेकिन विकास के नाम पे वोट नहीं मांग रहे हैं. ये आपके दावों की कलाई खोलती है बात. आचार्य जी लेट्स बी फेयर. अगर हर कोई जाकर के बताने लगा कि हम एक्चुअली किस प्लैंक पर वोट मांग रहे हैं, तब तो कैसे ही पॉलिटिक्स होगी. ऐसे कोई थोड़ा ना जाकर के बोलता है कि भाई ये स्टेटमेंट किए जनेऊधारी ब्राह्मण है, कोई जाके उसके बाद आपने प्रेस रिलीज थोड़ी ना भेजा उसके बाद कि जी हाँ हम ब्राह्मण के नाम पे वोट मांग रहे हैं इसलिए हमने जनेऊधारी ब्राह्मण बोला था. तो यही तो राजनीति होती है. पर मैं आखिरी में एक सीरियस सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ आचार्य जी, और आपसे भी फैजान जी, क्योंकि आप दोनों नॉन समाजवादी, नॉन बीजेपी से हैं. आचार्य जी, आपको ये चिंतित नहीं करता कि अब जबकि इलेक्शन मुश्किल से 2 महीने बाद है, आज मैंने 5 अलग अलग बाइट सुनवाई अमित शाह की, आपने नोटिस किया उसमें एक भी रैली में उन्होंने कांग्रेस का नाम तक नहीं लिया. सिर्फ और सिर्फ अखिलेश ये समाजवादी वो, अखिलेश ये समाजवादी वो. बीजेपी खुद लोगों को बता रही है कि हमारी लड़ाई अगर है तो सिर्फ अखिलेश से है. आप और बीएसपी तो है ही नहीं कहीं रनिंग में, वो आपको मान भी नहीं रहे. जरा संजू जी से कहिए. नहीं पदमजा जी, ये रणनीति बीजेपी और समाजवादी की मिली भगत है. मैं यही तो कह रहा हूँ, बीएसपी को सबसे ज्यादा डर है भारतीय जनता पार्टी को, इसलिए वो समाजवादी को दिखा रही है कि जनता को गुमराह कर सके, पर जनता इस बार गुमराह नहीं होगी. सोच लीजिए फैजान जी, अभी तक तो ये बी टीम का ओहदा सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी को था, अब अखिलेश यादव को भी मिल रहा है. ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, बी टीम वाला कॉर्नर थोड़ा सा क्राउडेड हो जाएगा. आचार्य जी बताइए. कंफ्यूजिंग नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक और पोषक हैं. पदमझा जी, ये अखिलेश यादव जी से जब बात करेंगे ये भारतीय जनता पार्टी को बताएंगे लड़ाई में, भारतीय जनता पार्टी से पूछिएगा वो अखिलेश यादव को, क्योंकि दोनों को पता है कि बहुजन समाज पार्टी जमीन पर है और वही चुनाव जीत जाएगी, इसलिए एक दूसरे की लड़ाई दिखा रहे हैं कि बीएसपी ना आगे निकल जाए. अच्छा, आप उनको पूरक और पोषक बोल रहे हैं, वहां दिन रात समाजवादियों पे रेड हो रही है, आप उनको पूरक और पोषक बोल रहे हैं बीजेपी को समाजवादियों का. ऐसा पूरक और पोषक कोई अपने दुश्मनों को भी ना बोले. वो रेड भी एक दूसरे को बता रहे हैं. आप बताइए, वो रेड भी एक दूसरे का बता रहे हैं. वो बता रहे हैं बीजेपी का है, वो बता रहे हैं कि एसपी का है. ये नहीं बता रहे वो देश की जनता का पैसा है, भ्रष्टाचार का पैसा. शुभ बोलिए फैजान जी, अगर आप रेड को गठबंधन का साइन बताएंगे, कल को ऐसा ना हो कि बीएसपी के किसी आदमी पे रेड पड़ जाए. एनीवे बताइए आचार्य जी. देखिए, मैं कहना चाहता हूं पदमजा कि बीजेपी को सूट करता है कि उसकी फाइट समाजवादी पार्टी से होती हुई दिखाई दे, क्योंकि जब समाजवादी पार्टी से भाजपा की फाइट होती दिखाई देती है तो इलेक्शन अपने आप हिंदू मुस्लिम रंग ले लेता है. और ऐसे बहुत से कारण हैं, और आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं. कांग्रेस से जिस दिन उन्होंने अपनी फाइट दिखा दी, उस दिन कांग्रेस जीतेगी और बीजेपी हारेगी, क्योंकि बीजेपी ये चाहती है कि उनकी फाइट समाजवादी से दिखती रहे, जिससे हिंदू मुस्लिम रंग इलेक्शन का आता दिखाई. ये उनका मेन कारण है कि कांग्रेस का वो नाम नहीं लेते हैं. और जिससे आदमी
is a कोई डरता leaderless party उसका नाम नहीं today with लेता। no cadre on the ground. बीजेपी जानती है कि अगर इस देश से कोई बीजेपी को हटा सकता है वो कांग्रेस है। चलिए ठीक है, अभी ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि अभी तक जो अब्रीविएशंस हैं निजाम और वीवीवी पीपीपी, उसमें कांग्रेस का नाम कहीं फिट ना हो रहा हो, कल को शायद कोई एक अप्रोप्रिएट अब्रीविएशन मिल जाए तो आपका नंबर भी आएगा आचार्य जी। थैंक यू वेरी मच। इन द मीन टाइम वी आर एंडिंग ऑन अ सिविल नोट। थैंक यू वेरी मच बोथ जेंटलमैन, संजू वर्मा एंड ज़ेबा यास्मीन, फॉर जॉइनिंग मी।